Friends, now we will discuss some more questions of exercise 5.2, that is question number third. If you have any problem regarding this AP, you can ask me. I am going to explain question number third of third, and mute yourself. If you have nothing to ask, mute yourself. It is given 5 blank blank and 9 whole 1 upon 2. See here, we have to fill these gaps. इन gaps को हमें क्या करना है, भरना है. तो here a is equals to 5 and this is our first, second, third, fourth term, means a4 is equals to 9 whole 1 by 2. If we find d from here, तो we can fill this. अगर हमें d मालूम हो जाए तो हम लोग इसको भर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐड करोगे तो यहाँ भरा जाएगा d, और जो d आएगा इसमें ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा. तो a4 मीन्स व्हाट, a plus 3d is equals to 9 whole 1 by 2. a is 5 here, plus 3d is equals to 9 whole 1 by 2. So 3d is equals to 9 whole 1 by 2 means 19 by 2 minus 5. It is 9 by 2. 3d is equals to 9 by 2. This implies that d is equals to 9 by 6. It means 3 by 2. It will be 3 by 2. So d is here 3 by 2. 3 by 2 means 1.5. You can write it 1.5. Now add 1.5 here. So 5 plus 1.5. It will become 6.5. When you add 1.5 here, you get 8 here. So in this way, we have filled here. In the similar way, question number 4th and 5th of 3rd will be done. Question number 4th. In this question, it is given that which term of the AP 3, 8, 13, 18 AP is given 3, 8, 13, 18 dot dot dot. Which term of this AP is 78? मतलब इस तरह से ये बढ़ता जाए तो 78 कितने नंबर के बाद आएगा, मीन्स इसका कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 78. तो हियर nth term, an means nth term is given 78. Already here it is given कि nth term is 78 and a is how much, here a is 3 and d is 5. And we know the formula of nth term, a plus n minus 1 into d is equals to 78. This implies that a is 3 plus n minus 1 into d means 5 is equals to 78. This implies that it is multiply here, 3 plus 5 n minus 5 will be equals to 78. This implies that 5 n minus 2 is equals to 78. This implies that 5n is equals to 78 plus 2. So 5n is equals to 80. So n is equals to 80 by 5. It is 16. Means 16th term of this AP is 78. क्या होगा? 16th term will be 16th term of this AP will be 78.
Now question number 5th. Question number 5th is given कि find the number of terms in each of the following APs. 7, 13, 19 dot dot dot. Here it is 205. देखो इस क्वेश्चन और ये फोर्थ वाले में कोई डिफरेंस नहीं है. नो डिफरेंस इन क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th. ये कह रहा है कि इस तरह से ये देखो 7, 13, 19 मीन्स 6 बढ़ते जा रहा है. तो 205 कितने नंबर पे आएगा, मतलब कौन सा टर्म इसका 205 होगा. तो वी कैन राइट हियर a is equals to 7 and d is equals to, you can directly write d or you can subtract here. सीधा सीधा लिख दो d6 है, या 13 minus 7 करके तुम इसको लिख सकते हो 6. और ये क्या है, ये लास्ट में लिखा हुआ, इट मींस इट इज nth टर्म, लास्ट टर्म. लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म. अगर एंड में जो टर्म आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, an, nth टर्म. तो आवर an इज गिवन. देखो अब उसके जैसा आ गया. an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 205. हियर a इज नोन, d इज नोन. यहाँ a और d तुम्हें मालूम है, इसमें बैठाओ और सॉल्व करो. यू गेट द आंसर. डू योरसेल्फ. ये क्वेश्चन खुद से करो. जिसे प्रॉब्लम होगा वो फिर पूछ लेगा कहां पे तुम्हें प्रॉब्लम है. In the same way, second question of 5th is also like first. 18, 15 and half, 13. 18, 15 and half, 13 dot dot dot. Last term is minus 47. Here it is given minus 47. See here, इसके second question में क्या है, a is 18. Here a is equals to 18 in solution and d is how much. देखो d कितना होगा, ये 15 होल 1/2 में से हम माइनस कर देंगे 18 को, तो इट विल बी 31/2 माइनस 18, तो इट विल बी माइनस 5/2. देखो 18 2 जा 16 माइनस 31, 36 माइनस, हाँ सर 34 आया है. इसका n का वैल्यू कितना आया, 34 ना सर 34. चेक योर आंसर विद द बुक, मैच योर आंसर इन द बुक. इसको बुक में मैच कर लो. सी हियर a is equals to 18, d is equals to minus 5/2. d यहां मालूम हो गया तुम्हें. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2.5 and an is 40 minus 47. Again write the formula of an, put the values of a and d, you get the value of n. यहाँ वैल्यू तुम्हें मालूम हो जाएगा. ओके चलो, तो ये हो गया 5th. Question number 6. Check whether minus 150, check whether minus 150 is a term of the AB, is a term of the AP. 11852. 11852 dot dot dot. See here in question number 6, it is given that कि AP is given 11852 dot dot dot. ये एक AP है.
क्या इसमें कोई ऐसा टर्म आएगा जो -150 हो सकता है? ऐसे यहाँ देखो 3 यहाँ पे घटते जा रहा है, तो ऐसे घटाते घटाते जब हम चलेंगे और एपी जो बनेगा लास्ट में, क्या कहीं इसमें -150 आएगा या नहीं आएगा? तो एक तो है कि यहाँ बैठ के हम बैठाते रहें घटा के, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट विल टेक मच टाइम एंड दिस क्वेश्चन विल कम इन 1 मार्क्स। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और तुम इसी में 10-20 मिनट लगा दोगे, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा, इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें छूट भी सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हाउ शैल वी सॉल्व इट? Solution will be done like this. Here AP is 11852 dot dot dot. So here A is equals to 11 and D is equals to -3. 8 में से 11 घटाओगे तो -3 and let AN is equals to, हमने मान लिया कि इसका कोई टर्म -150 है, AN is equals to -150. Write the formula of AN. A plus N minus 1 into D is equals to -150. A is 11 plus N minus 1 into -3 is equals to -150. Now multiply here. 11 minus 3N plus 3 is equals to -150. What we get here, -3N plus 14 is equals to -150. So we get here -3N is equals to -150 -14 or -3N is equals to -164. So N is equals to -164 by -3. This minus and minus will be cancelled. 3 5 ja 15, 3 4 ja 12, whole 2 by 3. N is equals to 54 whole 3 by 2. See here, what we are getting here, कि N is coming, N is 54 whole by 2, whole 2 by 3. तो 54 whole 2 by 3 is not an integer. किसी भी एपी में जो n आएगा, n, what will be n? n must be a natural number. n क्या होना चाहिए? n ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है. तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कभी इसका टर्म नहीं हो सकता है. तो यहाँ क्या लिखोगे कि सिंस n never be fraction, therefore -150 is not a term of the given AP. -150 is not a term of the given AP. n क्या है? n नेवर भी फ्रैक्शन, n कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पोजीशन है. पोजीशन ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव में होगा एंड इट विल बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर पता है ना, 1 2 3 4 5. जैसे किसी का पोजीशन बताना है, अगर 10 20 50 लड़के एक लाइन से खड़े कर दिए जाए, तो पहला पोजीशन पे एक लड़का, दूसरे पोजीशन पे दूसरा लड़का, तीसरे पे कोई पोजीशन 2.5 और 3.5 में तो आएगा नहीं. इसलिए ये n कभी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता. ओके, सो नोट इट डाउन.
Okay. Next question. Question number 7. Find the 31st term of an AB whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. So see here, 11th term is given. 11th term is equals to 38 and its 16th term is 73. 16th term is 73. तो 11th टर्म को हम लोग A11 लिख सकते हैं एंड 16 टर्म को A16 लिख सकते हो. A11 मीन्स A plus 10D. A11 can be written A plus 10D. This is equation number first. And A16 can be written A plus 15D is equals to 73. It is equation number 2. Now solve equation 1 and 2. You get there A and D. A और D तुम्हें मालूम हो जाएगा. जब A और D मालूम होगा तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं. तो from here we can write A plus 15D is equals to 73. This is second equation. Now minus minus minus. This will be cancelled. Minus 5D is equals to minus. It will be 35. 3 minus 8, 6 minus 35. So D is equals to 7. The value of D is 7. Now put this value in equation number 1 or 2. You get the value of A. And putting D equals to 7 in equation number 1. Equation 1 is A plus 10D. A plus 10 into 7 is equals to 38. So A is equals to 38 minus 70. So A will be equals to 70 minus 38. It is 232 minus 32. The value of A is minus 32 and the value of D is 7. So we need to find, here we have to find which term of the AP? 31st term. So A31 will be what? A plus 30D. A is how much? Minus 32 plus 30 into D is 7 minus 32 plus 210. Subtract this 32 from 210. So 210 minus 32. 8 will be here. 10 minus 3. 7 and 1. It is 178. 178 will be the 31st term of this AP.
इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो. हेलो, ये समझ में आया सभी को? हेलो. यस सर. यस सर. हेलो. हाँ, यस. हेलो. हाँ जी, बोलो. हेलो. यस, आई एम लिसनिंग. टेल मी व्हाट हैपेंड. बोलो. सर हाँ, बोलो. उत्तर समझा, यहाँ पे वो एक बार उत्तर समझा दीजिए. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो लिए हैं वहां पे. उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मेथड तो पहले ही बताया गया था ना, थर्ड चैप्टर जो था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कल ही बताया गया था कि इफ इट इज 11 टर्म तो इसको a प्लस 10d लिखा जा सकता है. ये a 16 है तो यहाँ a प्लस 15d लिखा जा सकता है. दोनों को सॉल्व करना है. a और d निकल गया. सुनाई नहीं दे रहा है सर. क्या है? सर आवाज आपका लैग हो रहा है. माइक ऑफ करो. माइक बंद करो. म्यूट योरसेल्फ. मैं ही म्यूट कर दूं सबको. क्वेश्चन नंबर 8. An AP consists of 50 terms. Means an AP is given in which there are 50 terms. Total कितने terms हैं? 50. It means n is equals to 50 हो गया. In which third term is 12. A3 is equals to 12. Third term means A3. And the last term is 106. And the last term is 106. लास्ट टर्म मतलब क्या होता है? an. इसको l भी लिखा जा सकता है. an is 106 and you have to find 29th term of this AP. इसका A29 find करना है. What will be this A29? So write here the formula first here, right? A3 is 12. A3 is 12 means A plus 2D is equals to 12. This is equation number first. And AN means A50. A50 is equals to 106. It will be A plus 49 is equals to 100. 49D is equals to 106. This is equation number 2. See here. देखो n का वैल्यू 50 है and last term is given 106. So it will be 50th term. इसका 50th term क्या होगा? 106. So A plus 49D is equals to 106. Equation 1 and 2 are given. Solve them. Equation 1 और 2 यहाँ दिया हुआ है. इनको solve करो. You get A and D, value of A and D. और A और D का वैल्यू आएगा तो 29th टर्म का फार्मूला लिखोगे A plus 28 तो तुम्हें मालूम हो जाएगा. Do yourself. Question number 9. In question number 9th, it is given that the third and the 9th term means A3 is given 4 and A9 is given -8. यहाँ and An is equals to 0 is given. Find n. You have to find the value of n. AP का third term is 4, ninth term is -8 and nth term is 0.
कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म जीरो होगा। मैंने मान लिया कि इसका nth टर्म जीरो होगा। I have taken here the nth term will be 0. तो find we have to find the value of n. मतलब कौन सा टर्म इसका जीरो होगा। तो what shall we do here again? As question number 8 we will solve this. A3 can be written a plus 2d is equals to 4, equation number first, and a9 means a plus 8d is equals to minus 8. It is equation number 2. Solve these two equation. इन दोनों को सॉल्व करो और यहाँ an means a plus n minus 1 into d is equals to 0. सी हियर, यहाँ से a और d का वैल्यू निकालो। वह a और d का वैल्यू यहाँ बैठाओगे, सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी खुद से अब करना। ये हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा इसको भी सॉल्व करो। सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करके बताओ किसका कितना आंसर आया। सर 8 का 64 आ रहा है। इसका आंसर आया 64। 4 ए और डी कितना आया इसमें? D2 A8. ए इज इक्वल्स सर टू 8 8 आ रहा है। एंड डी इज इक्वल्स टू 2। यस, ठीक है। बाकी लोग अपना इससे मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। फर्स्ट फाइंड ए एंड डी। पहले ए और डी फाइंड करो। यस, इन दोनों को उतना ही आ solve रहा है। करके। क्या उतना ही आ रहा है? d is equals to -2 सर। ये एक और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। ये क्वेश्चन मार्क को मैं रिमूव कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस क्वेश्चन मार्क। रिमूव, रिमूव। सॉल्व करो इसको। d is equals to -2 सर। Sir, d equals to -2, a equals to 8. देन फाइंड दिस n। n का वैल्यू निकालो। ये अभी तक गया नहीं। ये बेटा एक क्वेश्चन मार्क लिख के ज्वाइन किए हो, आपको कल से हटा दिया जाएगा। जब भी आप लोग ज्वाइन करेंगे नाम लिख के ज्वाइन करेंगे। Sir, n5 आ रहा है। Okay. 5 आ रहा है। n कितना आ रहा है? सर 5. 5 सर। ओके 5। डी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे? डी कितना आया? Sir, -2. -2। -2. तो ये समझ में आया ना? ये सारे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें देखो एक ही फार्मूला हमें पढ़ना है एंड दैट फार्मूला इज व्हाट? a प्लस n-1 इंटू डी। डी a प्लस n-1 इंटू डी। डी केवल इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। यार अभी भी कैसे है भाई? रिमूव इट। सो क्वेश्चन नंबर 10th। देखो ये सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओगे तो इजीली यू कैन सॉल्व इट। अपने आप सॉल्व कर सकते हो। अब सी क्वेश्चन नंबर 10th। In this question, it is given that the 17th term of NAP exceeds its 10th term by 7. 17th term means A17 exceed its 10th term
A10. 10th term means A10 by 7. We need to find the common difference D. हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. देखो 17th टर्म मीन्स A17 exceeds 10th टर्म मीन्स 10th टर्म से अधिक है. कितना? 7. exceed मीन्स ज्यादा है. तो 17th टर्म मीन्स A plus 16D minus A plus 9D will be equals to 7. Open this bracket. A plus 16D minus A minus 9D will be equals to 7. A and A is cancelled. Solve it, you get the value of D. यहाँ तुमको D का वैल्यू मालूम हो जाएगा. In the same way, Sir, 1. D will be 1. D कितना आ जाएगा? 1. Sir, 1 आएगा. Yes. तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करना है. Very less time is today. तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और कभी भी आप लोग जब भी ये लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे. वहाँ आपका नाम लिखने को आता है ना जूम पे. जब जैसे ही ज्वाइन करते हो तो वहाँ एक आता है लिखने को कि बाय विच नेम यू वांट टू ज्वाइन दिस. तो आप अपना नाम लिखेंगे. ये जो कोई आर लिखता है, कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो ये आप नहीं करेंगे. अगर ऐसा करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको मैं रिमूव कर दूंगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द मीटिंग अगेन. सो टेक केयर ऑफ इट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन होना चाहिए. जैसे कुछ का है, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका एक ही क्वेश्चन है, सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. व्हाट इज दिस? एक बार एक्सप्लेन करने से क्या होगा? तुम थोड़ा ध्यान दो कि किस टॉपिक पे तुम्हें प्रॉब्लम है. एट विच टॉपिक यू हैव प्रॉब्लम. केवल उसको पूछो. अब ये नहीं कि पूरा अब एक बार लिख दिया गया पूरा, अब फिर से क्या, तो ये समझ में नहीं आ रहा है. पहले समझो चीजों को, घर पे बैठ के स्टडी करो. ठीक है? इस तरह के और भी क्वेश्चंस करना फ्रॉम साइड बुक्स एंड फ्रॉम NCERT. नेक्स्ट कल फिर किया जाएगा. ओके, बाय बाय फॉर टुडे.